Okay, so the recording has started, gentlemen, and you understood that this topology has two networks. Do remember, gentlemen, further that a host can send a message, number one, to itself or to someone in the same network. Like, for example, 2.31.2 want to send to 31.3, or 31.2 want to send to 31.4. So all of these four nodes are local to each other because they are part of the same network. That's the reason the second type becomes when a node sends to a local host. And the third one, when it sends someone which is not part of your own network, which is not part of your own LAN. So like here you can see that this device is not belonging to this network. So when 32.2, for example, ping, or it will go through the router and will reach here. Furthermore, let me tell you that hub and access point, they are layer 1 devices. Switches are layer 2 devices, and routers are layer 3 devices. So here we have seen the layer 1, layer 2 and layer 3 intermediate devices as well in this topology. Although ये टॉपिक हमारा नहीं है इस वक्त का, ये रिकॉर्डिंग, ये टॉपिक इस वक्त का हमारा नहीं है, लेकिन जस्ट मैं देखा कि लोगों को पढ़ने के बाद भी इन छोटी छोटी बातों का क्लियरिटी नहीं होती. That is the reason I made it clear. Okay, so let's continue. Let's continue. Okay, so gentlemen, what he's saying, what, and I wish कि आप ये डॉक्यूमेंट जो आपके सामने मैंने रखा है, आप ये डॉक्यूमेंट अपने सामने, बेहतर ये होगा कि आप जो पैकेट ट्रेसर भी है, ये डॉक्यूमेंट भी है, कुछ आप मेरे साथ कर लें, और अगर कुछ रह जाता है तो एटलीस्ट आप एक आइडिया होगा, और कहीं आप स्टक होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकेंगे कि जी मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, आप मेरे साथ स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं फिर, और हम उस मसले से निकल जाएंगे. लेकिन अगर आप बाद में करेंगे और अगर आप महीने और 6 महीने के बाद करेंगे, फिर वो कभी भी नहीं करेंगे. ठीक है. तो व्हाट इज सेइंग, gentleman is saying that gather the PDU information for local network communication. Yani for example, he wants that when 31.2 talks to 31.3 or .4 or .5, so the PDU, which is PDU, you know, which means the packet data unit, the protocol data unit. The protocol data unit when moves, so he want that this information you should read. And then similarly, you should do it similarly for the remote network. Like for example, then when 31.2 talks to 10.2, which are different networks. So I mean they are remote to each other. So these are two very, very basic tasks. First of all, if you can see, gentlemen, if you can see at the bottom of this page, there is a table. So we can find these values from this topology, no problem. Like for example, at what how we do it, I will explain to you in a minute. But before doing this, okay, so what is saying that generate a PDU from 31.5 to 31.2, which means .5 wants to talk to 2. So here is 31.5, sorry, 31.5. Here is the desktop and here is the command prompt. So it is very much similar to CMD, exactly same like the CMD, I should say like this. So gentlemen, I want to ping 172.16.31.2. So let's do it. Ping 172.16.31.2. And why it is unreached? सर आपने 192 लिख दिया, 172. Okay, nice. बिल्कुल जी, आपने ठीक प्रिडिक्ट किया. That's the reason, क्योंकि ये डिवाइस है ही नहीं, so that's the reason it was the issue. 172.16.31.2.
and it is answering. Now the question is, this is something which we do in the real time. When I write here, for example, CMD command prompt, and I write here ping www.cisco.com. If somebody wants to ask me कि मुझे ये पैकेट लाजमी तौर पे गया है, उसका रिस्पॉन्स आया है 166 मिली सेकेंड में, मुझे वो हर PDU हर पैकेट दिखाओ, sorry, I can't do this. One way I can, and that is that I should put a packet sniffer on my this wireless interface, and I should sniff that packet, and then I can show you all of this. This is nice. If I'm doing it in a simulation mode, gentlemen, the method is that you should, instead of using the real time, you should put it in the simulation mode. You should start in the simulation mode. So I click the simulation mode. So gentlemen, you can see here this panel, which is the simulation panel. Now, furthermore, you can see that he has put a filter on only ICMP, which means only the ICMP packet will be filtered, the rest will be ignored. So it is our choice which protocols, packets, PDUs we want to capture and which we don't want. So here, and you can change it, edit filter. Here is the ICMP. If you want the OSPF, EIGRP, BGP, RIP, HSRP, DHCP, ARP, or the miscellaneous ones, or the IP version 6 ones, all we can capture, no issue. But in this example, what we are interested in? We are interested in the ping. And Fakhr Zaman knows that ping is done by the ICMP, by using the ICMP protocol. So that's the reason we have clicked only ICMP and the rest is clear. We don't want to capture it. Okay. So gentlemen, what I do now, I write the same command. Oh, sorry, it is Cisco. I'm not interested in Cisco no more. I'm interested in the CMD of 131.5. So I write here ping 172.16.31.2. I click it, and I'm in waiting state. Why? Because, gentlemen, you can see here that this packet, ICMP packet, has been created on node 172.16.31.5, which is this one. This one. And you can see here a green envelope as well, which is showing that a packet has been generated at this node, and that has been created by the ICMP. You can see it as well. Click it, and you can see the complete OSI model with all the headers. So gentlemen, Emil, you know that ICMP is a layer 3 process. That's the reason we don't have the transport layer and the application layer. And you can see here as well that the source IP is 31.5 in this packet and the destination is 31.2. You can see also that the source MAC address is 00D0 and blah, blah, blah. And the destination header is MAC address is this one. You may not agree with me, but if I place, for example, on this 2, प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें जी, चलें आप अपने पास नोट डाउन कर लें, हम यहाँ से देखते हैं वाकई ये है भी कि नहीं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो लिख लें अपने पास सोर्स आईपी इज दिस वन, डेस्टिनेशन आईपी इज दिस वन, source MAC address is this one, destination MAC address is this one, and it is using the gigabit Ethernet port 0. जब लिख लें तो मुझे बता दें। फखर जमान, यस सर, लिख लिया, गुड। अब मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं चला जाता हूं इसके पास, और यहां पे मैं लिखता हूं जेंटलमैन
आई शुड ओपन अनदर वन. इसको मैं अभी नहीं छेड़ता, इसको नहीं छेड़ता, मैं इस H2 को खोल लेता हूँ. डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट एंड आई हियर आई राइट ipconfig. Gentlemen, please see that it is showing that the destination IP address is 31.2 and the MAC address, physical address is not given. Okay, I will write here ipconfig/all and you can see the physical address as well. 000C. Fakhar Zaman, is it the same? Yes sir, same है सारा. सेम है सारा. Yes, sir. बिल्कुल. इसका मतलब है कि जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जैक्टली दैट हैज बीन पुट इनटू दिस PDU. मेक सेंस? Yes sir. Good. Now, ladies and gentlemen, you should click this button. What will happen? The next event will happen, and the next event will be that this packet will reach to the switch. Let's see. Yes, this packet arrived at started from 31.5 and landed on switch S1. And the packet is ICMP. Even if you click it, you can see the inbound and the OSI model, inbound PDU, the outbound PDU, you can see. But the greater interest is here. The source, the destination. So, and because it is now a layer 2 device switch, so it doesn't take care of layer 3. That the reason it is only the source is 000D, which is 31.5, and destination is 000C, which is 31.2. So you can see here the same packet is given on it arrived on Ethernet, gigabit Ethernet interface 1.1 and going through 3.1. Good. Then, gentlemen, you can see that you should click this again, and this packet will be landing toward the hub. Dilaways, जब ये पैकेट पहुंच गया हब के पास, what do you expect now? सर वो IP चेक करेगा. IP check करेगा. Nice answer. Anyone else? Asad. When this packet arrived at the hub, what will happen? सर ये दोनों को सेंड करेगा, दो जो आईपी वो कनेक्टेड है ब्रॉडकास्ट करेगा दोनों. बिल्कुल, ये ब्रॉडकास्ट करेगा. दिलावेज, ये कोई राउटर नहीं है, लेयर 3 डिवाइस नहीं है, ये आईपी नहीं पढ़ सकता. दिस इज डंप डिवाइस. ये बस जो इसके पास आया, जितने भी पोर्ट्स थे, यहाँ तो खुशकिस्मती से 2 हैं, यहाँ पे अगर 20 भी लगे होते ये पैकेट ये 20 को भेज देता. और यही अगले स्टेप में आपको नजर आएगा. इसी वजह से आप जब ये चीजें काम कर रहे होते हैं, जो क्लासरूम में आप नहीं सीखते वो यहाँ पे आप सीख जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. आपको ये बातें टीचर ने कई दफा कही होंगी कि स्विच, ये भी मैं अगर आपको पहले मैंने ये पिंग ना किया होता तो ये स्विच भी सबकी तरफ भेजता, क्योंकि इसके पास अभी आप देखेंगे इसके पास मैक टेबल बन चुका हुआ है. अगर वो ना होता तो ये भी सबकी तरफ भेजता. हमने पढ़ा था कि स्विच पर लर्निंग करता है, स्विच फॉरवर्डिंग करता है, लर्निंग के बेस के ऊपर फॉरवर्डिंग करता है. कुछ याद आ रहा है दिलावेज? जी सर, याद आ गया. वेरी नाइस. अब जब ये देखिए पैकेट यहाँ पहुंचा, हमने दोबारा क्लिक किया, देखिए इसने दोनों को दिया है. आप देख सकते हैं कि एक ने जिसके लिए नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि नॉन प्रीमिस्टिस मोड में काम करते हैं, नहीं अगर इसका है तो ये रिसीव कर लेगा, और अगर इसका नहीं है तो ये रिजेक्ट कर देगा. तो देखिए इसने क्रॉस लगा दिया. तो आप यहां भी देखें 2 पैकेट जनरेट हुए, एक .3 की तरफ चला गया, एक .2 की तरफ चला गया. .2 वाले ने रिसीव कर लिया, .3 वाले ने इग्नोर कर दिया. अब क्या होगा? ये वापस पिंग का जवाब देगा. तो देखें ये भी हो रहा है यहाँ पे, ये पिंग का जवाब इसने वापस हब को दिया. हब एक बार फिर ब्रॉडकास्ट करेगी
इसकी तरफ भी भेजेगी, इसकी तरफ भी भेजेगी। लेट्स सी, बिल्कुल यही हुआ। इसने इसको रिजेक्ट कर देना है और स्विच ने इसको रिसीव कर लिया। स्विच अब किसको भेजेगा? 1.5 को। ये जी 1.5 के पास आ गया। जो ये पैकेट यहाँ पे पहुंचा, हम जाके देखते हैं अपने डॉट इसको कि क्या हो रहा है। देखिए एक का रिप्लाई आ गया। कितने टाइम में आया है? 6 मिली सेकेंड में आया है। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा है। एग्जैक्टली 6 मिली सेकेंड का टाइम लगा है। अब आपका दिल चाहे तो आप हर एक लेवल के ऊपर इसके पैकेट को ओपन करके कंप्लीटली इसको देख सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स का मैक क्या है, डेस्टिनेशन का मैक क्या है, कौन सी पोर्ट है, सारी इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? जी सर आ रही है। वेरी गुड। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो फिर हम कुछ इसके पेज नंबर 2 जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है, आप इसको अपने, अगर आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो एटलीस्ट आप इसको ओपन कर लें अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चन के जवाब, अल्दो मैंने जवाब भी लिखे हुए आपको दिए हैं। मेरा एक ख्याल ये था कि आपको ये जवाब हटा के दूं ताकि जवाब आप खुद निकालें, ताकि आप लर्न करें। लेकिन फिर इशू ये था कि अगर आप कोई गलत चीज़ भी निकाल लेंगे तो कहेंगे बस यही ठीक है, इसलिए मैंने जवाब भी दे दिए कि नहीं, आप खुद सोचें, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के मुताबिक सोचें, ये नहीं कि वहां से पढ़ के मुझे सुना दें। और अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग और ये एक ही आता है तो दैट्स नाइस, और अगर एक नहीं आता तो लेट्स डिस्कस इट, लेट्स हैव अ डिबेट। तो अगर आप लोगों ने खोल लिया है अपने स्क्रीन के ऊपर ये, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर देयर, ओके, कहता है वर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स मीडिया यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस। क्या मिसाल के तौर पे इस डिवाइस को अगर आप देखें, इस नेटवर्क को आप देखें तो यहाँ दो मीडिया इस्तेमाल हुए हैं। आपका कॉपर मीडिया भी इस्तेमाल हुआ है और आपका वायरलेस मीडिया भी इस्तेमाल हुआ है, एयर भी इस्तेमाल हुआ है, अल्दो के फाइबर भी हो सकता था। तो ये आपसे पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप बताएं कि इसमें कौन कौन से मीडिया होते हैं इन नेटवर्क को बनाने के लिए। फिर ये क्वेश्चन करता है डिड द केबल चेंज द हैंडलिंग ऑफ द पीडीयू इन एनी वे। जब ये पीडीयू यहां से यहां गया तो क्या ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, लाजमी तौर पर दरमियान में क्या मीडिया है, तो क्या मीडिया इस को कोई तब्दीली लाता है? क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं लाता सर, वो तो नहीं लाता। हाँ, अगर कोई नॉइज आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉइज नहीं है तो फिर कोई ये तब्दीली नहीं लाता, कोई तब्दीली नहीं लाता। फिर ये कहता है कि डिड दी हब लूज एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। हब जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, क्या ये कोई इंफॉर्मेशन लूज करता है? नहीं, जो चीज की तरफ आई है सबकी तरफ भेज देता है, इसने क्या लूज करना है? ऐसी बात है ना। बिल्कुल सर। फिर कहता है कि अगर ये एक्सेस पॉइंट के पास जाए, कहता है कि डिड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट डू एनीथिंग विद द इंफॉर्मेशन गिवन टू इट। यानी जो इंफॉर्मेशन अगर अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, अब हम जब इस्तेमाल करेंगे रिमोट के लिए, मिसाल के तौर पर यही 1.5 रिमोट को करेगा, तो कहता है कि ये स्विच कोई तब्दीली, ये एक्सेस पॉइंट कोई तब्दीली करेगा या नहीं करेगा? क्या ख्याल है आपका? असद, एमल, फहर। अगर अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, although कि आप क्लिक करते जाएं, ये एक पैकेट में 4 पैकेट जाएंगे और ये तकरीब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम मैं इसको बंद कर देता हूं और आपको ये टास्क देता हूं कि हर एक पीडीयू को आप ओपन करें और उसको रीड करें और उसको समझें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे पास आए। ओके, अब जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि मैं इसको रियल में बंद कर देता हूं, सब कुछ खत्म हो गया, मैं दोबारा PC5 को ही ओपन कर लेता हूं और इससे पिंग करवाता हूं मैं लेफ्ट साइड पे जो हमारे 2 डिवाइसेस हैं उनमें से किसी एक को। तो ये पिंग 10.10.10.2, पहला पैकेट लॉस हो गया और बाकी 3 पैकेट्स पहुंच गए। अब अगर मैं दोबारा करूं तो 4 पैकेट्स पहुंचेंगे।
ऑल पैकेट पहुंचेंगे, 100% पैकेट पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये पैकेट यहां से चला, जब ये पैकेट यहां से चला, स्विच पे गया, राउटर पे गया, स्विच S1 पे S0 पे आया और फिर एक्सेस पॉइंट पे आया, तो क्या दिलावेज जब एक्सेस पॉइंट से इस तक गया, क्या इसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? सर नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और कोई है जो कि मुझे कोई जवाब देना चाहे? इमल, असद, फखर, बिलाल खामोश है। अब तो एग्जाम भी दे दिए बिलाल ने, अब तो वो एक्टिव हो जाना चाहिए। बिलाल है भी कि नहीं? मैं इधर ही हूँ सर। सर जी बिलाल। चेंज कोई नहीं आएगा सर इसमें? कोई चेंज नहीं आएगा। जी सर। गुड आंसर। लुकमान? नो सर, चेंज नहीं होगा सर। कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मैं कहता हूं चेंज। असद क्या कहता है? असद कहता है आएगा या नहीं आएगा? अमानुल्लाह क्या कहता है? सर कोई चेंज नहीं है। तो सब ने, इसलिए मैं कहता होता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि क्लास में जमहूरियत नहीं होती, वरना पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो कि आपके ये स्विचेस जो हैं ये ईथरनेट स्विचेस हैं। यहाँ भी जो आपकी इंटरफेस है वो ईथरनेट इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आपका ईथरनेट का जो फ्रेम है और जो आपका वाईफाई का फ्रेम है, क्या ये एक ही तरह के हैं? नो सर। नो सर, ये 802.3 को फॉलो करता है, ये 802.11 को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये 3 का हेडर रिमूव करेगा और 11 का हेडर लगाएगा। इसका मतलब तब्दीली तो आएगी। क्या ख्याल है फखर? जीशान? यस सर। गुड। तो ये यहाँ पे इसने लिखा है कि डिड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट डू एनीथिंग विद द इंफॉर्मेशन गिवन टू इट? तो उसने कहा यस, इट रीपैकेज इट एज ए 802.11 फ्रेम। कुछ बात समझ आई? जी बिल्कुल समझ आ गई। वेरी गुड। तो अब आपका टास्क ये है कि आपको विद आंसर, ये डॉक्यूमेंट मैंने दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, कोई 20 आंसर्स भी हैं। आपने ये तमाम क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अपने मुताबिक सोचना है, इसके आंसर को नहीं देखना इस पे ऊपर, बल्कि कोई टेप लगा दे फॉर अ टाइम बीइंग। इसलिए मैंने आंसर दे दिए कि अगर आप कोई गलत बात भी सोच रहे होंगे तो आप कहेंगे बस यही आंसर है। तो इफ योर आंसर डजंट मैच विद व्हाट इज रिटन हियर, देन वी कैन डिस्कस इट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और आपने पहले कहा कि नहीं, एंड आई डिडंट डिस्करेज यू कि नहीं गलत हो गया, ताकि आई प्रोवाइडेड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू हैव अ डिस्कशन। एंड फाइनली वी केम अप कि नहीं, देखे ना, यहाँ पे 802.3 है, यहाँ पे 802.11 है, दे हैव डिफरेंट फ्रेम स्ट्रक्चर, डेफिनेटली इट विल बी रीपैकेज्ड। बात समझ आ गई? यस सर। गुड, यस सर। वेरी नाइस। अब हम आते हैं अपने अगले टास्क पे, सर? व्हिच इज जी सर अभी जब आपने पिंक किया तो पहले 3 पैकेट रिसीव हुए, फिर 4 पैकेट रिसीव हुए, फिर फर्स्ट उसमें 4 के 4 नहीं रिसीव हुए। जब मैंने पिंग किया, रिमोट को कहना चाहती हैं? जी जी सर बिल्कुल। जी बिल्कुल। अभी इसको देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये मैं जिस सिमुलेशन मोड में जाता हूं ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आए, ये मैंने .5 पे गया और .5 को कहा कि पिंग करो किसको, 2.2 को पिंग करो, 2.2 को, और यहां पे क्लिक कर देता हूं। बिलाल क्या कर रहा हूं मैं, पिंग को स्टार्ट करता हूं। ये जी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पहला पैकेट जनरेट हो गया .5 के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट करता हूं तो आपने देखा कि स्विच S1 के पास चला गया। तो देखें ये .5 से 31.5 से स्विच S1 के पास चला, स्विच 1 के पास चला गया। फिर क्या होगा, स्विच 1 से राउटर R1 की इंटरफेस जिसका एड्रेस है 172.16.31.1। आप यहाँ पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये अच्छा क्वेश्चन किया दिलावेज ने कि जब .5 31.5 भेजेगा, 31.5 भेजेगा, तो यहाँ पे भाई आपका ये डिवाइस 10.2 है,
लेकिन 10.2 का मैक एड्रेस तो उसको नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 10.2 का मैक एड्रेस है 00602F844AB6, लेकिन ये नजर तो नहीं, मतलब मुझे तो नहीं पता कि इसका मैक एड्रेस, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ इंटरफेस भी है और इसमें वायरलेस इंटरफेस भी है, इसमें ईथरनेट इंटरफेस नहीं है। द क्वेश्चन इज, इसको तो नहीं पता, हो सकता है ये डिवाइस अमेरिका में पड़ा हो, जापान में पड़ा हो, हमें क्या पता। तो जीशान और फाखर क्या होगा कि ये किसका मैक एड्रेस यूज करेगा दिलावेज, क्योंकि दिला वो तो डालना है। सर स्विच का सर नेक्स्ट वो जो डिवाइस स्विच का डालेगा, क्या ख्याल है? मोहम्मद बिलाल ने कहा कि स्विच का डालेगा, क्या ख्याल है असद का? और बिलाल जो है वो नस से के पढ़ के आया हुआ है, तो सोच के जवाब दीजिएगा। जी असद, असद नहीं बोलता, असद कहता है कि स्विच का। तो देखें उसने भी नस्ल की इज्जत रख ली, अल्दो उसको पता है कि बिलाल गलत कह रहा है, लेकिन वो कहता है कि किस तरह हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट में होती यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी बात कर सकता हूँ। तो जेंटलमैन इसका कोई इसका नहीं होता, ये स्विच का राउट लगाएगा। हमने पढ़ा था गेटवे का, याद होगा। अब आप यहाँ पे देख भी लेंगे, मिसाल के तौर पे ये मेरा पहला पैकेट था, इसमें सोर्स आईपी जो है वो 31.5 है, डेस्टिनेशन जो है वो 10.10.2 है। वेरी नाइस, लिख लें अपने पास ताकि हम इस चीज को क्लैरिफाई कर सकें। कहता है कि जनाब जो सोर्स का मैक एड्रेस है वो 00D0 है। अपने पास बिलाल लिख लो, असद लिख लो, क्योंकि आप लोगों ने ये बोला था, तो देखते हैं आपकी बात दुरुस्त है या नहीं है, हम इसको समझना चाहते हैं। तो सोर्स का मैक एड्रेस है 00D0 D31 D311 C788, डेस्टिनेशन है 00D0 BA8E 741A। लिख लिया अपने पास बिलाल आपने? यस सर। या पेंसिल नहीं है? चले कोई और लिख ले, अगर बिलाल के पास पेंसिल पेन नहीं है, पेंसिल पेपर इस वक्त नहीं है, तो एमल लिख ले, दिशान लिख ले। हम तो सिर्फ मकसद है कि चीजों को समझना। सर लिख लिया, पिक्चर बना लिया, आप आगे जाएं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब अगर ये बात हो गई, हम पहले तो ये इसको क्लोज करके इसका मैक एड्रेस देखते हैं। इसका मैक एड्रेस आपको नजर आ रहा है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 0 का 00D0। अल्दो ये मैं गलत तरीके से बता रहा हूँ। क्यों गलत तरीका? क्योंकि मैं नॉर्मली स्टूडेंट को कहता हूं कि जी आपके पास ये तो नहीं होगा कि आप कर्सर लेकर ओरिजिनल स्विच के ऊपर या डिवाइस के ऊपर रब करेंगे और आपको नजर आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने क्या करना है, इसको खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ipconfig/all लिखना है, तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है 1.5 का 00D0 D311 C788। लिख लिया? अब मैं जाता हूं राउटर पे, राउटर R1 पे गया, इसकी CLI पे गया, और लेडीज एंड जेंटलमैन एग्जैक्टली, और आपका नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रूटर। वहां आपकी ये कंफ्यूजन भी जो कि काफी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ है कि जी हम तो रियल राउटर पे काम नहीं कर रहे, हम तो पैकेट ट्रेसर पे कर रहे हैं, एग्जैक्टली दिस इंटरफेस विल बी देयर। तो वो फर्दर इट विल बी नाइस। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ये क्लास छुट्टियां नहीं करते, तो लेकिन फिर भी जब हम 10th चैप्टर पे जाएं तो छुट्टी बिल्कुल मना है। मैं राउटर पे आ गया, यहाँ पे लिखा ENABLE एनेबल और इंटर किया, तो मैं चला गया प्रिविलेज मोड में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो इंटरफेस, शो इंटरफेसेस, इंटर किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका जो एक इंटरफेस है
वो तो 10 10 10 10 10 1 है, देखिए ये नजर आ रहा है। और ये है इसकी फास्ट इथरनेट 0/0 अप है, और इसका हार्डवेयर एड्रेस ये है। जो कि ये बनती है इंटरफेस 10 10 10 1 ये है। दूसरी इंटरफेस इसकी ईथरनेट 0/1 है। ये इसका पहले इधर इसका इंटरफेस हम देख लेंगे कौन सा इंटरफेस है। अगर हम ऑप्शंस में जाकर प्रेफरेंसेस में जाकर और ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस कर दूं और क्लोज कर दूं, तो ये इसकी फास्ट ईथरनेट 1.0 है और ये फास्ट ईथरनेट 1.1 है। अब मैं राउटर पे जाता हूँ, मैं इस राउटर पे जाता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं इस राउटर के पास जा रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं राउटर के पास, राउटर ऑलरेडी खुला हुआ है, ये राउटर की इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 1/0। सीरियल है, ओके ओके, 0/1, ये उल्टा लिखा है, 1/0 नहीं 0/1 है। हिस्ट्री इट इज डाउन, इसलिए ये रेड है, इसलिए ये रेड है। लेकिन आपके लिए क्यों, बट इट इज शोइंग यू, हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं हम उसमें नहीं इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड अभी हम इसको देख लेते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इसके मैक एड्रेस में। देख लें यही है मैक एड्रेस इसका 00D0588C। मैं राउटर पे ही हूँ, मैं राउटर पे ही हूँ, तो इसका मैक एड्रेस ये है। और हमारे उसमें यही था, नहीं मैंने तो नोट नहीं किया हुआ, दिलावेज यही है, नहीं सर डिफरेंट था। ये डिफरेंट है, अभी हम देख लेते हैं। ओके, इसको हम रन करके शो रनिंग कन्फिग करते हैं, शो रनिंग कन्फिग, तो अब हमें नज़र आ जाएगा। ओके, ये क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0 जिसका आईपी एड्रेस ये है और 0/1 है, ठीक है, और ये शट डाउन है, तो उसको हटाना कोई मसला नहीं है हमारे लिए, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये पैकेट कैसे चला गया, ओ यस हियर इट इज, फास्ट इथरनेट 1/0 जिसका आईपी एड्रेस ये तो है 1/0 इसमें, ठीक है। 1/0 यू कैन सी हियर इट हैज एन आईपी एड्रेस, जैसे मैंने कहा था 172.16.31.1 31.1, तो इट इज देयर, नो प्रॉब्लम जी। अब हम जाते हैं वापस और इसको कहते हैं शो इंटरफेसेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देखते हैं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, ब्रीफ, और यहाँ पे एक इसका ये फास्ट इथरनेट मुझे अप, और एक इसका ये आता है, नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी नाइस। तो अगर ये है तो अब हम इसका शो इंटरफेसेस, शो इंटरफेसेस, तो पहला हो गया 0.0, ओके, फिर उसके बाद ये 0/1 सीरियल इंटरफेस, डाउन है, ये भी सीरियल इंटरफेस, और फिर ये 1/0, और इसका है 00D0 BA8E741A,
मेरे ख्याल से यही था उस वक्त दिलावेज। बिल्कुल सर, अब सेम है। बिल्कुल सेम है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो हमने ये देखे ना, ये स्टडी करने से, एनालिसिस करने से चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चली जाती हैं कि दिशान आप कह सकता है कि इसने जो पैकेट बनाया है उसमें इसने मैक एड्रेस अपना लिखा, आईपी एड्रेस अपना लिखा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिखा, लेकिन मैक एड्रेस लिखा किसका? गेटवे का, नॉट ऑफ द स्विच। एमएल बिलाल, यस सर। ठीक हो गया? क्लियर और क्लैरिटी आ गई? यस सर। यस सर। गुड। अब स्विच ने, जी बिलाल। सर हम जब भी किसी पैकेट को ट्रैवल करते हैं तो उसका जो मैक एड्रेस होता है वो सिर्फ अगले हॉप तक ही होता है, मतलब जी अगले हॉप तक होता है, और हॉप से मुराद होता है जैसे अभी आपने कहा हॉप का मतलब राउटर्स। जी सर। जी। अब जब ये देखें ये पहुंच गया राउटर के पास, देखें पैकेट राउटर के पास है, राउटर जब भेजेगा स्विच S1 की तरफ तो वो उसको इसका मैक एड्रेस पता है। तो आप देख सकते हैं राउटर भेज रहा है स्विच S1 की तरफ। अब अगर आप इसको पढ़ें तो यू विल फाइंड कि इसमें जब ये पैकेट इन लेयर आया तो इसमें सोर्स का एड्रेस जो है वो 00D0 था, यानी कि इसका था 5 का, और डेस्टिनेशन का जो था वो ये है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो सोर्स आपका 00D0 588C2401 है, और डेस्टिनेशन आपकी ये है। आप अगर चाहें तो इसको पीडीयूज की फॉर्मेट में भी यूं देख सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर होता है ना, आपको पता है जब हम आपको हेडर पर पढ़ा रहे होते हैं तो यूं ही होता है ना, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेटा एंड ऑल दिस, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाती हैं। अब जब स्विच इसको आगे भेजेगा तो डेस्टिनेशन आपकी क्या है? 10.2, जो कि 0060 होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं 0060 है कि नहीं है। जी बिल्कुल 60060 है वायरलेस इंटरफेस का। एग्रीड? यस सर। गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये काम तो हमने सीख लिया। अब इसको अगर आप खत्म करना चाहें तो रियल टाइम में ले आए, सारे पैकेट चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब मैं देखना चाहता हूं आर्प टेबल। तो अगर मैं आपको कहूं कि मिसाल के तौर पे मैं 1.5 के आर्प टेबल को देखना चाहता हूं, और आर्प टेबल को देखना चाहता हूं, तो कमांड क्या होगी? आर्प -a। तो आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर ने ये 1-5 ने 1.1 के पास भेजा था। अभी 1.1 ये है, और इसने 1.2 के साथ बात की थी। ये दो कम्युनिकेशन है। 1.1 की हुई थी क्योंकि इसने जब इसकी तरफ भेजा 10.10.2 की तरफ तो इसका पैकेट इधर गया था। तो आप इससे आपको ये पता चला कि आप एक लाइन आपका ये है, ठीक है ना, इसने इसके नहीं अपने पास नोट किए, अपने लाइन के सिर्फ आर्प टेबल के अंदर आप एंट्रीज ऐड करते हैं। अब मैं आपको कहता हूं यहां से आप पिंग करें 0.5 पे नाम, मैं पिंग करता हूं 172.16.31.4 को। ये हो जाए तो फिर 0.3 को भी करता हूं, बल्कि अब मैं सिर्फ आर्प यही कमांड दोबारा लेकर चलता हूं, आर्प -a। देखिए एक एंट्री और आ गई, 0.4 की एंट्री भी आ गई कि 0.4 का मैक एड्रेस ही है। तो ये अपने पास ये टेबल बिल्ड करता जा रहा है। अब मैं 0.3 को करवाता हूं ताकि हमारी और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ये देखिए 3 को पैकेट गया, और इस पैकेट जब गया तो लेडीज एंड जेंटलमैन फिर मैंने आर्प -a किया। अब देखिए चारों का इसने अपने पास 1 2 3 4 5 ने सब के मैक टेबल इसके पास का टेबल पूरा पॉपुलेट हो गया। इन अदर वर्ड्स, अगर आप डिलीट करना चाहिए सब कुछ तो आर्प -b कर दें। अब आर्प -a करें, आर्प -a कहता है नो एंट्री। आपने इसकी तमाम एंट्रियां जो थी वो डिलीट कर दी हैं। सो अगेन क्या करें?
दोबारा आप कोई पिंग कर दें, .3 को आपने पिंग किया और दोबारा आप ARP-A करें, देखिए 3 की एंट्री आपके पास आपके आपके कंप्यूटर में आ चुकी है। तो यूं इसका मतलब ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि हर एक मशीन जब भी कोई पैकेट भेजती है तो जब उसको उसका जवाब मिलता है तो वो अपने पास उस जवाब को अपने पास, मैंने आपको याद हो 2 बातें कही थी कि ARP के दौरान 2 काम होते हैं। एक, जब आप ARP भेजते हैं और आपको उसका जवाब आता है तो अपना टेबल आप पॉपुलेट करते हैं और फिर उस टेबल के मुताबिक आप अपना पैकेट बनाते हैं और भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको ये चीज़ ज़रा फर्दर दिखाना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे जब सिमुलेशन मोड में आया तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ ICMP पकड़ रहा था, मैं ARP भी पकड़ता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ शो ऑल, सारी चीज़ें, सारे प्रोटोकॉल रख लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और अब मैं ऐसे कहता हूँ कि पिंग करो, अब मैं ऐसे कहता हूँ कि पिंग करो ताकि आपको समझ आ जाए। ये लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको क्लियर नहीं, यहाँ पे CLS होगा, फिर CLS भी नहीं है, चलिए नहीं है तो ना हो। हम करते हैं पिंग, ये आ गया जी पिंग, ये पिंग, पहला पैकेट यहाँ पे आया। आप में से कौन, अभी तक आप मेरे साथ काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं, मुझे आप में से कौन बताएगा कि जो मेरा सिमुलेशन पैनल है उसमें कितने पैकेट जनरेट हुए होंगे। मैंने पिंग की कमांड भेजी है .5 से .3 की तरफ। असद, एमल, लुकमान, पहले सर एक ही पैकेट, आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। एक ही पैकेट का जवाब आया। क्या ख्याल है दिलावेज? एक ही आया सर। एक ही पैकेट, यहाँ पे एक ही आया। हाँ, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं इससे खुश इसलिए नहीं हूँ, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ जी, मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं इसको अब एक और पिंग देता हूँ, इसको भी यहाँ से इसको भी ख़त्म करता हूँ ताकि मैं जो चीज़ दिखाना चाहता था मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन अब पिंग किया, थोड़ा डिफरेंट कंप्यूटर को करता हूँ। मैंने प्रीवियस केस में .3 को किया था क्योंकि .3 का पहले से मैंने किया हुआ था, अब मैं .2 को करता हूँ और ये मैंने कर दिया। बताएं जी कितने पैकेट जनरेट हुए होंगे? सर एक ही जनरेट होगा। एक ही जनरेट होगा। वेरी नाइस। और कोई क्या ख्याल है? असद का क्या ख्याल है? असद ने हमें लिख के बताना है। सर 2 होंगे सर। 2 होंगे, नजर आ गए हैं साइड से। क्यों 2 होंगे? सर एक ARP प्रोटोकॉल का और एक ICMP प्रोटोकॉल। यस यस, क्योंकि उसमें ARP ऑलरेडी था, .3 के केस में ARP हो चुका हुआ था, इसलिए आपको नजर नहीं आया था। यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहे हैं। देखिए 2 पैकेट हुए, एक ICMP का, एक ARP का, क्योंकि ICMP का ARP-A में हमने देखा था कि .2 के लिए उसका मैक उसके पास नहीं था, मैक उसके पास नहीं था। चलें, अब आप में से कोई बताए कौन सा पैकेट आगे जाएगा? ICMP का जाएगा कि ARP का जाएगा? ARP का जाएगा सर। ARP का जाएगा। ICMP का पैकेट कंप्लीट ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर मैक एड्रेस नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप देखेंगे कि ARP का पैकेट गया। देखिए ARP का पैकेट स्विच की तरफ गया। अब स्विच से ब्रॉडकास्ट हुआ। मैंने बताया था कि स्विच जो है वो, सॉरी ARP जो है ब्रॉडकास्ट करता है। मैं देखें वापस आता हूं, ये स्विच पे मैं आया क्योंकि दिस पैकेट वाज ए ब्रॉडकास्ट पैकेट। तो ऑन द स्विच इट विल गो टू द राउटर, इट विल गो टू द हब, इट विल गो टू द R4, और हब तो है ही हब ब्रॉडकास्ट, ये भी दोनों को भेज देगा। इसके मतलब पूरे नेटवर्क में ये चीज फैल जाएगी। ये देखें जी, अब राउटर इसको गिरा देगा। देखिए इसमें पर डॉट आ गया, क्रॉस आ गया, राउटर इसको गिरा देगा क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं बर्दाश्त करता, और क्योंकि ये R4 के लिए भी पैकेट नहीं है इसलिए भी इसको ड्रॉप कर देगा। अब ये हब इस दोनों की तरफ भेजेगा, इनमें से भी एक ड्रॉप कर देगा जो डेस्टिनेशन नहीं है,
और जो डेस्टिनेशन है वो अपने पास उसको रख लेगा और फिर इसका जवाब देगा, और जवाब जो आएगा वो ब्रॉडकास्ट होगा या नहीं? नहीं सर। वो यूनिकास्ट होगा। तो ये हम देखना चाहते हैं कि वो यूनिकास्ट होगा। ये यूनिकास्ट पैकेट स्विच की तरफ आया, ये ब्रॉडकास्ट करेगा क्योंकि हब है। ये यूनिकास्ट हो कुछ भी हो, ये सबको ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच के पास आया, स्विच इसको C5 की तरफ 31.5 की तरफ भेज दिया। अब आपको मैक मिल गया। अब यही मैक आप इस पैकेट में दोबारा देखें, ICMP का पैकेट आपके सामने आ गया। अब वो कंप्लीट हो गया है, 6 मिली सेकेंड में वो कंप्लीट हो गया है। अब वो अपनी कम्युनिकेशन 5 की तरफ पिंग का पैकेट भेजेगा। देख सकते हैं आप, देखिए ये पिंग का पैकेट उसने स्विच की तरफ भेजा, स्विच हब की तरफ भेजेगा, हब जो है वो दोनों की तरफ भेजेगा। बदकिस्मती है लेकिन ऐसा ही होगा। कुछ बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। वेरी नाइस। तो आपने ये देखा कि स्विच किस तरह, तो जब ये ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो ब्रॉडकास्ट का एक पैकेट अगर हम पकड़ लें, ये आर्प का पैकेट था, इसमें मैक एड्रेस क्या होगा दिलावेज असद? इस आर्प पैकेट में सोर्स तो ये खुद होगा 31.5 का जो भी मैक एड्रेस है, ABCD फॉर एग्जांपल। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या होगा सर? FFFF ये ऑल होगा। एफ FFFF ऑल ब्रॉडकास्ट। देख लेते हैं हमने कहीं झूठ तो नहीं पढ़ा। ये है आपका, देखें जी FFF है। तो इस टूल से सीखने का फायदा ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो चीज आपने पढ़ी है या सीखी है वो वाकई कंफर्म हो जाती है कि हाँ वाकई ये ऐसी बात है। सर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे थे। जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर दूं? सर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आगे वो आंसर कंप्लीट नहीं किया था। मतलब क्वेश्चन मेरा ये था कि जब आपने आर्प किया नहीं सर, मेरा तो क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है सर जो मैंने क्वेश्चन पहले किया था तो वो आपने आधा आंसर किया था, लेकिन फिर आप 8 पे आ गए थे, वो कंप्लीट नहीं तो किया क्वेश्चन क्या था? मुझे भूल गया था, दोबारा क्वेश्चन सर वही जो पहले आपने पिंग किया था तो 3 पैकेट रिसीव हुए थे, दोबारा पिंग किया था तो 4 पैकेट रिसीव हुए थे। वो फर्स्ट गो में ही वो 4 के 4 पैकेट रिसीव क्यों नहीं हुए थे? हाँ, इसलिए नहीं हुए थे कि एक पैकेट ने जो इसका जो RTT है, मिसाल के तौर पे वो 10 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड में जवाब नहीं आया। आपको मेरी बात समझ आई? मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको इसका जवाब अभी देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं 10.3 से 10.2 को करता हूं। ये मैंने 10.3 लिया, इसके डेस्कटॉप पे गया, रनिंग में गया, और यहां से मैं करता हूं पिंग और इसको करता हूं 10.10.10.2। पहला पैकेट लॉस हो जाएगा। क्यों हुआ? इस दौरान आर्प हो रहा है, पिंग का पैकेट अनहेल्ड है, उसको जवाब नहीं मिल सकता। जब जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्या रिस्पॉन्स दे, क्या लिख देगा? टाइम आउट। तो क्या लिख देगा? टाइम आउट। लेकिन इस दौरान, टाइम आउट के दौरान में आर्प कंप्लीट हो चुका होगा, तो दूसरा पैकेट जो है वो सक्सेसफुली चला जाएगा, और यूं आपकी 4 में से 3 पैकेट या 10 में से 2 पैकेट व्हाटएवर, एक पैकेट लॉस हो जाएगा, बाकी पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। जी सर, क्लियर हो गया। गुड जी, नाइस जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्विच का कैसे आप, ये तो आपने आर्प -a के जरिए स्विच एंड होस्ट का मैक टेबल, आर्प टेबल देख लिया। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्विच भी आपका अपने पास एक टेबल बनाता है, और अगर मैं इसका टेबल देखना चाहूं तो आई शुड राइट हियर एनेबल, और यहां पे मैं कमांड दूंगा शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। मैं इसको इंटर करता हूं। देखें, इसने हर एक बताया कि जी मेरे गीगाबिट ईथरनेट, मेरी जो जितनी भी पोर्ट्स हैं उसमें गीगाबिट ईथरनेट 3 जो है उसके साथ जो डिवाइस अटैच है उसका मैक एड्रेस ये है, जो 2 है उसका मैक एड्रेस ये है। मिसाल के तौर पे प्रॉब्ली ये 3 पे ये है सी, अब ये अपने पास नोट कर लें 000C85, 000C85। हम यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, देख लें
This is 000D D311. 00D 00D 0, yeah, this one 00D0D311. This is on gigabit Ethernet port. तो देखिए इसको पता है कि अब मेरे इस पोर्ट के साथ जो डिवाइस अटैच्ड है उसका मैक एड्रेस ये है। तो अब आपके पास जब पैकेट आता है आप इस टेबल को देखते हैं, स्विच साहब इस टेबल को देखता है कि जी अगर इस मैक एड्रेस को देना है, ये मेरी गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 1.1 पे 1/1 पे, ये मैं इसको अगर देना है तो ये मेरी फास्ट ईथरनेट की पोर्ट 0/1 पे है। अगर ये मैक एड्रेस उसके फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मेरी 3/1 के साथ है, एंड सो ऑन। कुछ मेरी बात समझ में आई? यस सर, लेकिन सर अगर स्विच को ये पता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग क्यों करता है, फिर वो डायरेक्ट ओके, नाइस क्वेश्चन। मैंने पहले कहा कि उसके पास अभी भी आप देखें तो सबका नहीं है। ये जितनी हम कम्युनिकेशन करते रहे, जब इसके बाद पैकेट आता था तो ये सोर्स का एड्रेस पढ़ता था कि किस पोर्ट से मेरे पास आया है। तो ये कहता था अच्छा ये तो गीगाबिट 1/1 से आया है, 1/1 से आया है। ओके, इसके अंदर सोर्स का एड्रेस ये लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ये लिखता आ गया। अगर इनिशियली हम देखते हैं और हम करते हैं कि शो मैक एड्रेस टेबल तो ये खाली आता। बात समझ आई दिलावेज? जी सर। इस वजह से शुरू में ये करेगा ब्रॉडकास्ट, लेकिन बाद में फिर ये करता है यूनिकास्ट। ठीक हो गया? यस सर। ओके, और ये काम आप कर भी सकती हैं कि आप इस टेबल को क्लियर करें, और अभी मैंने आपको सिखा दिया कि सिमुलेशन मोड में रन करें, और आप देखेंगे कि ये पैकेट एक जब जाता है तो ये वो करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इसके मैक, और पहले इसको चेक कर लें कि शो मैक एड्रेस टेबल खाली है। मेक सेंस? बिल्कुल सर। गुड। उसके बाद जो आखिरी चीज आपके साथ करना चाहता हूं वो है कि आपका राउटर के पास भी ये टेबल होना चाहिए। राउटर के पास भी ये टेबल होना चाहिए, और उसको टेबल को अगर आप देखें, ये कमांड दें तो कमांड तो चलेगी, शो मैक एड्रेस टेबल, ये खाली चलेगा मैक एड्रेस टेबल। ये शो मैक एड्रेस टेबल, शो इट्स फाइन, शो मैक एड्रेस टेबल चलना तो चाहिए। यहाँ नहीं एग्जिट करते हैं, यहाँ पे देते हैं शो मैक एड्रेस नहीं लेता एड्रेस टेबल, और अगर नहीं लेता तो अच्छी बात है, हम कमांड इसको देते हैं शो आर। लेकिन शो आर ने हमें बता दिया कि कौन कौन सी इसके जो आईपी लगे हुए इसके साथ 10.10.1 ये खुद है, इसका मैक एड्रेस ये है। 10.10.2 ये है, इसका मैक एड्रेस ये है। 10.172.16.31.1 मैक एड्रेस ये है। 31.5 मैक एड्रेस ये है। इसने भी अपने पास ये टेबल बनाया हुआ है, विच वी कैन सी बाय यूजिंग शो आर। कुछ बात समझ आई? बिल्कुल सर। वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो एग्जांपल्स कह लें, टास्क कह लें, स्किल टास्क कह लें, आपके साथ आज शेयर की गई। इस वजह से की गई कि मुझे ये उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान क्लासरूम में ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा टीचर्स का पता नहीं क्यों जो एम्फेसिस होता है वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाना के ये बस ये हुआ। आप भी सुन लेते हैं, कोई बातें ज़हन में समझ आ जाती हैं, कोई नहीं आती, लेकिन देखा नहीं होता, इसलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ नहीं जाती। लेकिन आज आपने सारी चीज़ों को एज ए टास्क लिया और इनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में भी कल सुबह या जिस वक्त भी आपको टाइम मिलता है आप इनको खुद भी परफॉर्म करेंगे, और इनमें कुछ सवालात हैं, उनके जवाब आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो द क्वेश्चंस आर देयर, द आंसर्स आर आल्सो देयर,
बट आई विल प्रेफर कि आप ये ना करें कि डायरेक्ट आंसर पढ़ के कहें बस हो गया. इट इज नॉट डिजायर. Think about that. If your answer and this answer tallies, it's fine. If it is different, think about it again. And if still you cannot find the answer, please ask me, and I will try to make it clear. कुछ बात समझ आई? Yes, sir. Good. So अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो करें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो then I may stop for today's, and inshallah ta'ala we